ٹھیک ہے 4 سائز ہے 34 ہے، اس میں 1700 روپے کے بن لے آرام سے۔ اگر کوئی اس خاندان کا بندہ فوت ہوتا ہے، سامنے والی جو جگہ خالی ہے یہاں پر ان کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ بابا تھکا ہوا ہو ایسے سونے بیٹوں کو دیکھے تو تھکاوٹ ختم نہیں ہو جاتی؟ ہاں لیں جی ابھی پہنچ چکے ہیں جی امیروں کے قبرستان میں، اور یہاں پر زیادہ تر جو قبریں ہیں 3 سے 4 فلور کہہ لیں سٹیپ کی ہوتے ہیں۔ ایران میں کچھ اس طریقے کے قبرستان ہوتے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئے ویڈیو میں۔ کہیں گے کہاں ریڈی ہو کے جا رہے ہیں، بیگ بھی اٹھا لیا ہے بھائی، باہر نہیں جا رہے، اسی شہر کے اندر ہی جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے آج کی ویڈیو روٹین شیئر کریں گے، ساتھ رہیے گا ویڈیو کے اینڈ تک، آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جی چلتے ہیں سب سے پہلے دوست کے ہاں، وہاں پر بلا رہے ہیں، کام ہے چھوٹا سا، وہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آگے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ گرمی بھی کافی ہے لیکن بھائی بائک کو تالا لگا دیا۔ تالا لگانا بھی ایران میں ضروری ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پر چوری نہیں ہوتی بھائی، یہاں پر بھی چوری ہوتی ہے۔ یہ ہے جی ایران کی ٹیکسی، تو یہاں یلو کلر ٹیکسی ہر جگہ پر یلو ہی ہوتی ہے بھائی۔ تو جی چلتے ہیں جی۔ السلام علیکم غضنفر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، جانتے ہوں گے ماشاءاللہ یہ ساتھ تھے ہمارے سفر عشق کی جو سیریز تھی نجف میں ماشاءاللہ، لیکن ہم سے واپس جلدی آ گئے۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ چلو جی بھائی چلتے ہیں جی، یہاں ملاقات کرنی تھی بھائی صاحب سے، وہ تو ہو گئی، تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ گھر کی طرف، بائک کو گھر کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد جانا ہے گاڑی پر کسی جگہ پر۔ جی نسیم بھائی آ گیا ہے ایران کی رانی کو لے کر، تو جو نسیم بھائی چلیں پھر چلیں بھائی، چلتے ہیں تھوڑا بس سٹاپ کی طرف، وہاں جو ہے تھوڑا کام بھی ہے، اور آج جو ہے آنے والی شب مغفرت بھی ہے، تو چلتے ہیں۔ اچھا بھائی جو ہے نا شہر سے اندر سے نہیں گئے، باہر والا مین جو روڈ ہے ہائی وے کہیں جو بھی کہیں وہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے رش اتنا نہیں ہوتا، شہر سے جاتے تو اچھا خاصا رش ہو جاتا اور ٹائم بھی کافی لگتا، تو ہمیں جلدی ہے تو وہاں جانا بھی ہے پھر واپس بھی آنا ہے، کیونکہ آج شب مغفرت بھی ہے اور حاضری بھی دینی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی ماشاءاللہ آج گاڑیوں کا رش بھی کافی ہے، ہم بھی آگے ہیں اور رش بھی آگے بہت ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہمیں پہنچتے بھائی۔ اچھا جی ہم پہنچ چکے ہیں جی، قم کا مشہور قبرستان ہے بہشت معصومہ، تو یہاں کیوں آئے ہیں اور آج جو ہے رش بھی بہت ہوگا، اس کی وجہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قبرستان تو ویسے ہی ہے، سب نے آنا ہوتا ہے حاضری کے لیے، فاتح خانی کے لیے، تو ہم بھی آئے ہیں، اور خاص ایک وجہ اور بھی ہے جو میں نے سوچا آپ کو اکثر جو سوال کرتے ہیں کہ ایران کے قبرستان کس طریقے کے ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں جی۔ یہ سامنے ہے جی سارد خانہ، یہیں پر غسل وغیرہ دیا جاتا ہے، اور اس کے فرنٹ پہ ہی آپ کو جو ہے جگہ ملتی ہے جہاں آپ جو ہے نماز جنازہ وغیرہ جو ہے پڑھتے ہیں، تو یہیں پر ہی لے کر آتے ہیں جب انسان فوت ہو جاتا ہے، تو یہیں پر غسل وغیرہ سب کام جو ہے انجام ہوتے ہیں جی۔ ابھی گاڑی یہاں پر کھڑی کر دی ہے، اور سب لوگ جو بھی آئے ہوئے ہیں نا اپنی گاڑیوں پر ہی آئے ہوئے ہیں، یا اسپیشل گاڑی ہے یا بس کے ذریعے سے چلتے ہیں جی۔ یہاں پاکستانیوں کی کچھ جو دوست احبابوں نے ذمہ لگایا تھا فاتح خانی بھی کرنی تھی، تو ہم نے سوچا فاتح خانی بھی ہو جائے گی اور تھوڑا یہاں کا ماحول بھی دکھائیں گے، ان کے کلچر کس طریقے کا ہے بھائی۔ ایران میں کچھ اس طریقے کے قبرستان ہوتے ہیں کہ آپ کو تعویذ وغیرہ نظر نہیں آتے، ایسے پلیٹیں لگائی ہوتی ہیں، ان کے پر نام ڈیٹیل وغیرہ سب کچھ جو ہے لکھی ہوتی ہے، اور یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر کچھ اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے۔ اچھا جی یہاں پر ایک قبر ہے جو تعلق ہے ان کا ہندوستان سے، سیدہ سردار فاطمہ رضوی ہے، خدا ان کو جنت میں جگہ دے انشاءاللہ، تو سب جو قبرستان میں دفن ہے ان کے لیے ایک فاتح خانی ہو جائے، تو جمیعاً سب کے لیے، تاکہ انشاءاللہ کوئی مختص نہ ہو، آئے ہوئے ہیں سب، یہ دیکھیں آپ نظر آ رہے ہیں نا، سب اپنے اہل ویال جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی فاتح خانی کے لیے آئے ہیں۔ اچھا جی آئے ہوئے تھے قبرستان، کچھ دوستوں کے اہل خانہ یہاں دفن ہیں تو ان کی فاتح خانی کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا ایران کے قبرستان کے بارے میں تو اکثر سوال کرتے ہیں تو ان کا بارے میں تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سوال کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایرانیوں کا یہ کس طریقے کا قبرستان ہے، پکنک منانے آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں، تو اس کے مد نظر میں کہہ رہا ہوں ایک جواب دے دوں کہ بھائی آپ بھی کبھی ایسی پکنک منا لیں، کیا قبرستان چلے جائیں، آپ کے بھی اہل خانہ کوئی ماں باپ، کسی کا بہن بھائی، کوئی رشتہ دار دفن ہوگا، اس کی فاتح خانی بھی کر لیں۔ تو بھائی یہ بہشت معصومہ قم کا ایک مشہور قبرستان ہے، اور بہت بڑا قبرستان جہاں آپ کو اسپیشل گاڑی پر آنا پڑتا ہے،
या बस के ज़रिए से। और ऐसा कब्रिस्तान है यहाँ पर जो है आपको बस स्टॉप भी नज़र आता है। और यहाँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये स्पेशल नौज़ाद का जो है कब्रिस्तान है, यानी मुख्तस किया हुआ है कि भाई ये कब्रिस्तान जो है बच्चों का ही है। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से कब्रों को ढूंढा जाता है, इतना बड़ा कब्रिस्तान जो है, तो भाई यहाँ पर नंबर लगे हुए हैं, कत्ते नंबर लिखे हुए हैं। और उसके बाद एक कब्र का भी जो है नाम होता है, नंबर होता है। और जब अहले खाना कोई इस दुनिया से चला जाता है तो अहले खाना को नंबर दे देते हैं कि भाई ये जो नंबर है आपके फ़लाँ शख्स जो इस दुनिया से गया है उसका नंबर है, आप अगर आना चाहते हैं फातह खाने के लिए तो इस नंबर पर इस कते के हिसाब से आप आ सकते हैं। तो बात करें, अक्सर ईरानियों की ये बात मुझे बहुत पसंद आती है, जितना भी अपडेटेड लोग हों कल्चर के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, लेकिन जब शहादत का दिन हो ये शहादत मनाते हैं। और उसके अलावा शोहदा भी इन्होंने काफ़ी दिए हुए हैं। और इसी कब्रिस्तान बैश मसूमा में कब्रिस्तान में शहीद भी काफ़ी दफन है, पाकिस्तानी हैं, दूसरे हैं, ज़ायरीन जो भी आते हैं तो अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो इन्हीं बैश मसूमा में उनको दफन किया जाता है। तो वो हमने जो है फातह खान भी की थी, एक दोस्त की वालदा जो ज़ियारत के लिए आई हुई थी, तो खुदा उसको जन्नत में जगह दो, तो यहीं पर फौत हो गई। तो इसी कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया। और उसके बाद जो बात कर रहा था कि इंसान जो है ना, जब भी शब जुमा आती है, शब मगफिरत आती है, ये ईरानी घर से निकल पड़ते हैं, कार लेकर, अपनी सवारी लेकर, बस के ज़रिए से अपने अहलोयाल जो दफन हैं उनको जो है उनकी फातह खाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही मुझे पसंद आती है। और इसी कब्रिस्तान में एक बात शेयर करता जाऊँ कि इसी कब्रिस्तान में स्पेशल कब्रिस्तान भी है। आप कहेंगे स्पेशल से मुराद यानी भाई ऐसे कोई पैसे वाले हैं तो उन्होंने अपना रकबा लिया हुआ है कि भाई ये ख़ानदान के जो लोग इस दुनिया से जाएंगे ना, इस जगह पर दफन होने हैं। तो चलते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं जी, वो किस तरीके के हैं। वहाँ की कब्रों के फिर तवीज़ नहीं है, जैसे पाकिस्तान में कब्रिस्तान है तो वहाँ की कब्रों के तवीज़ बना होता है, तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ प्लेट लेते हैं, उस पर डिटेल वगैरह, नाम वगैरह लिख दिया और जो है तस्वीर लगा दी गई, कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर। पाकिस्तान वाला हिसाब किताब नहीं होता यहाँ पर। या जैसे अब इराक में वादी सलाम जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ का भी जो है तवीज़ देखने को मिलता है, बड़ी कब्रें होती हैं। लेकिन यहाँ ईरान में इस तरीके का नहीं है। लेकिन साफ़ सुथरे बहुत हैं कब्रिस्तान ईरान के, जहाँ इंसान का दिल करता है कि भाई मैं इधर आऊँ, अपने जो इस दुनिया से चला गया जाऊँ उस पर फातह खानी करूँ। तो ये वो कब्रिस्तान है, ये वो जगह है जहाँ मैंने, आपने, सब ने जो है यहाँ आना है। यह हमारी आखिरी आराम गाह है भाई। हमें तकब्बुर फ़ख्र किस चीज़ का करना, ये सब इसी ज़मीन के नीचे दब जाना है भाई। चलें भाई आपको अमीरों का कब्रिस्तान दिखाते हैं। कब्रिस्तान में आते हैं तो बच्चे भी साथ होती हैं कि जाएं, उनको भी ले जाएं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनका क्या ज़हन क्या है, वो कहते हैं दुख सुख के उनका वास्ता तो इतना नहीं होता, उनको समझ नहीं होती। तो ईरानियों ने एक पार्क भी बनाया हुआ था कि बच्चे बड़ों को जो है परेशान ना करें, तो यहाँ आराम से खेल सकें। तो बड़े जो है कब्रिस्तान में अपने फातिहा खानी भी पढ़ लें तो ये खेलते रहे। तो ये भी काविश अच्छी है इनकी। अब आ चुके हैं जी अमीरों के कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान देख के आपको लगेगा कि भाई अमीर अमीर हैं। वो कहते हैं जिंदा हैं, हमारे पास गाड़ी हो, ऐश के साथ रहें, मरने के बाद भी कब्रिस्तान कब्र ऐसी हो कि अच्छी आलिशान हो, इनके बस चले ना ये कब्र में एसी भी लगवा दें। ये आखिरी मकाम जहाँ वो कहते हैं बंदा अकेला होता है, कुछ टुकड़े कपड़े होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो ये कब्रिस्तान यहाँ पर देखें एक ही कब्र है, और यहाँ आपको दिखा सकूँ एक ही कब्र है, बाकी सब खाली है। तो ये है जी अमीरों का कब्रिस्तान। और यहाँ पर स्पेशल होते हैं कि यहाँ पर फ़कत जो है अपनी फैमिली के मेंबर ही जो यहाँ पर जो है उनकी कब्र बनाई जाएगी, कोई और नहीं बना सकता। इनको जो है खानवादगी जो है कब्रिस्तान भी कहते हैं ईरानी अपनी ज़बान में। तो यहाँ पर जो है स्पेशल फैमिली मेम्बर वाला बनाए जाते हैं और आलिशान बनाए जाते हैं। कहते हैं महल बने होते हैं, कब्र नहीं होती, महल बना हुआ है, कुछ इस तरीके का होते हैं। तो आगे चलते हैं, वो भी आपके साथ दिखाते हैं और भी कब्रें। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान है ख़ानदानी अमीरों वाला, इन्होंने अपनी ज़मीन जो है ख़रीदी होती है कब्रों के लिए। तो ये मुख्तस कर लेते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं ज़िंदा हैं तो हम सब खरीद सकते हैं, मरने के बाद भी जो है हमारी ज़मीन होनी चाहिए, स्पेशल हमारे लिए कब्रिस्तान होना चाहिए। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है आरामगाह खानवादगी
जरीन इकबाल, ये सब स्पेशल पहले से ही ख़रीद करके इन्होंने रखा हुआ है। अगर कोई इस ख़ानदान का बंदा फौत होता है तो वहाँ सामने वाली जो जगह खाली है यहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा जी, यहाँ दफना दिया जाएगा। वो तकरीबन कम से कम 8 कब्रों के निशान लगे हुए हैं, तो उनको यहीं पर ही दफना देंगे। तो आगे चलें तो यहाँ पर भी देखें फ़कत एक ही कब्र है, इस तरफ देखें तो एक ही कब्र है, वहाँ सामने देखें तो एक ही कब्र है, उस तरफ देखते हैं तो यहाँ भी एक ही कब्र है। तो आप कह लें कि ये स्पेशल लेकर उन्होंने पहले से ही रखा हुआ है, बुकिंग करवाई हुई है कि भाई ये ज़मीन तो हमारी है, तो हमारे फैमिली मेम्बर ही यहाँ पर जो है उनको दफन किया जाएगा। इसे कहते हैं जी अमीरों का पैसा जो है मरने के बाद भी जो है काम आता है, और काम करते भी हैं। इनके पास चले तो पंखा भी लगवा दें, एसी भी लगवा दें। यहाँ पर भी देखें ये भी फैमिली बना हुआ है जी। भाई अगर कोई दूर से आता है, एक शहर से दूसरे शहर से आता है कब्रिस्तान में, तो वहाँ जो है सहूलत भी उनके लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि आपको खाने पीने की सहूलत भी दी जाती है, शॉप्स भी इन्होंने बनाई होती है। और यहीं पर जो है ईरान का जो सिस्टम है ना, अगर कोई बंदा यहाँ से फौत हो जाता है तो उसको घर में नहीं रखते, सीधा ही उसको जो है सर्द खाने में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो गुस्ल वगैरह कर लेते हैं, कफन कर लेते हैं, उसके बाद जो है वारिसीन को बुलाते हैं कि भाई मैयत ले जाओ, जनाजा पढ़ा के दफन कर दो। तो यहाँ का सिस्टम कुछ इस तरीके का है। लेकिन खुश नसीबी ये होती है कि उसी मैयत को ले जाते हैं हरम हज़रत मासूमा में जो है तवाफ़ कराया जाता है। तो जी चलते हैं आगे की तरफ इंशाअल्लाह। भाई अगर कहीं भाई अगर कोई फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, पाकिस्तानी जो यादाश्त के लिए फिर अहले खाना जो है कोई भी फौत हो गया उसके लिए प्लेट बनवाना चाहते हैं तो कहाँ से बनेगी? तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, शहर में भी बन जाती है। लेकिन इसी कब्रिस्तान में भी शॉप्स हैं जो आपको इस तरीके की प्लेट जो है बना के देंगे, तस्वीर आप देंगे वो आपको बना देंगे, और मुनासिब कीमत भी होती है। जहाँ डिटेल वगैरह जो भी आप लिखवाना चाहेंगे तो आपको वो लिख के दे देंगे भाई। भाई चलते हैं अभी घर की तरफ। रश बहुत ही ज्यादा था जिसकी वजह से तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हमें बाहर निकलते निकलते। अभी चलते हैं घर की तरफ इंशाअल्लाह। जी पहुंच चुके हैं यहाँ मोहल्ले की एक हाइपर साले है जी, यहाँ नसीम भाई दोस्त रहते हैं, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, लेते हैं जी। ये है जी माई बेबी ब्रांड के पैम्पर हैं बच्चों के, ठीक है, 4 साइज़ है, 34 से इसमें है। और इसका रेट जो है ना तकरीबन 8,50,000 तुमान है भाई। यानी कम से कम ये 1700 रुपए के बन ले आराम से पाकिस्तानी, 1700 रुपए के पाकिस्तानी 4 साइज। मैंने कहा था ना कि भाई लोकेशन का भी फर्क होता है, हर चीज़ हर जगह पर सस्ती नहीं होती। तो अभी दही ली है, ठीक है जी, मेरे ख्याल में आधा किलो की है और 1 लाख तुमान की दी है। तो सेकंड लास्ट मैंने अपलोड किया था ना ब्लॉग, तो उसमें मैंने दिखाया था कि 1.5 लाख का किलो मिलता है जो दही का, लेकिन यहाँ पर जो है आधा किलो 1 लाख तुमान का हमें मिला है, यानी 200 रुपए पाकिस्तानी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं खैरियत से घर। तो यहाँ पर हटते हैं जी, गाड़ी को इधर ही खड़ाते हैं। काफी थक गए हैं भाई, सफर इतना ज्यादा नहीं था लेकिन रश था जिसकी वजह से। बच्चों दरवाजा खोलो, वेट कर रहे हैं हम, जल्दी से जल्दी करो यार, वेट कर रहे हैं, दरवाजा खोलो, क्यों शोर कर रहे हो? चलो अंदर, चलो चलो शाबाश, चलो भी चलो चलो चलो। भाई हसन की गाड़ी भी लेकर आए थे तो उसके लिए भी सेल लेकर आए। तो यहाँ पर जो है महंगे मिले, 1,65,000 के तकरीबन अराउंड कह लें 360 रुपए के 6 मिले। लेकिन हमने अपने इलाके में लिए थे तो वो जो शॉप सेंटर थी तो वहाँ पर जो हमें तकरीबन 1,30,000 यानी तकरीबन 300 रुपए के मिले थे। तो यहाँ पर थोड़े महंगे मिले हैं जी। तो हसन सारी थकावट इंसान की ना खत्म हो जाती जब ऐसे प्यारे प्यारे गुड़ियों को देखता है, बेटियों को देखता है, तो सारी थकावट ही खत्म हो जाती है। ऐसे बाबा बाबा थका हुआ हो, ऐसे सोने बेटियों को देखे तो थकावट खत्म नहीं हो जाती। हाँ माशाल्लाह, आ जाओ, बाबू को पमा करो, बाबू को पमा करो। आफरीन, गली 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 पाओ गली, आफरीन। अच्छा जी माशाल्लाह जी, खाने का टाइम हो गया, खाना भी बन गया है माशाल्लाह जी। बर्था बना हुआ है पाकिस्तानी, साथ रायता, ओह माशाल्लाह, रोटी भी है जी संगक, और सामने है जी माशाल्लाह पुलाव, आलू वाला पुलाव बना हुआ है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुक्र खुदा माशाल्लाह टाइम पर मिल गया जी। तो जी गजनफर भाई, नजीम भाई, बिस्मिल्लाह करें जी। गजनफर भाई मिलते हैं इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। पेट्रोल, चलो नजीम भाई शुक्रिया, शुक्रिया नजीम भाई, मिलते हैं सब ब्रेक के बाद, खुदा हाफिज। चलो अभी खैर से चले जी घर की तरफ। तो
چلو جی اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، التماس سے دعا، خدا حافظ.